Okay, beta. So our learning objectives, ठीक है, we are talking about movement of substances in and out of the cells. So we will be discussing processes of diffusion, facilitated diffusion, osmosis, active transport, ठीक है, then endocytosis, exocytosis, and here they are saying that no calculations involving water potential will be set. ठीक है, so follow these and then calculate the surface area and volumes of simple shapes including cubes. So we'll cover that also. ठीक है, and finally beta explain the movement of water between cells in solutions with different water potentials and explain the different effects on plant and animal cells. ठीक है, the rest of these ठीक है, so we'll just generally discuss, but they're part of your practicals also beta for your P3 paper. So let's see, we'll just discuss the concept and solve a few questions involving these inshallah from the past papers. So let's begin then. Okay, is the slide visible beta? Is it? Can you see it on the screen? Both of you? Yes, ma'am. Okay. Acha beta. So let's start with this. Whenever beta we talk about movement of substances in and out of the cell, we are saying this because we know कि आपकी जो plasma membrane है beta is selectively permeable. ठीक है? But Yes, this miss. material has to take place. So exchange of material beta दो तरीके से होता है. It can happen through passive transport. ठीक है? Passive transport का मतलब बेटा no energy will be required there. And second हो सकता है it can happen through active transport also. ठीक है? So the first three that they've shown you here with the diffusion, facilitated diffusion and osmosis. All these three are examples of passive transport. ठीक है? Active transport वैसे like if you elaborate further, active transport में एक होता है बेटा primary active transport. ठीक है, and primary active transport is the part where actually बेटा ATP will be required. ठीक है, and then comes the secondary active transport which is also known as co-transport. So this part here बेटा does not require energy. So what happens, it depends upon the energy. So ATP, sorry, active transport में जो already energy generate हो गई है, ठीक है, उसकी वजह से co-transport happens. ठीक है, so secondary transport does not require energy. ठीक है, so is this clear till now बेटे कि there are three types of Yes. passive transport processes? जी बेटे, फिर को ट्रांसपोर्ट एक्टिव होगा. co-transport is secondary active transport. ओके. ठीक है, co-transport का मतलब ये होता है कि like for example if sodium is coming in, तो सोडियम के साथ साथ glucose will also tag along. ठीक है, तो एक के बजाय दो चीजें आ रही हैं. ठीक है, तो उसको हम co-transport कह रहे हैं. ठीक है, okay, so let's talk about homeostasis first. So because of beta we are talking about transport, तो उसका main reason क्या है? Cell has to maintain homeostasis. ठीक है, so it has to maintain a constant internal environment. So और क्या क्या चीजें अंदर आ सकती है? You know, but glucose has to come in the cell, amino acids. ठीक है, then things have to go out of the cell also. तो ये सारी चीजें requirement के वजह से तो they need to be transported in and out of the cell. ठीक है, but cell membrane acts as a barrier. ठीक है, so let's see better what does it allow to enter, what does it not allow to enter. Okay, then this is the specified key term that you would be using with it because they're looking for keywords in your paper now. So concentration gradient, whenever we are talking about concentration, you're talking about actually the solute concentration generally. Any किसी भी particular chemical substance की बात करें, but we are talking in terms of density of that substance. Density की किसी को definition याद है? Physics में पढ़ी होगी. Mass per unit area volume. Per unit volume. ठीक है, अब देखो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. देखो एक गिवन वॉल्यूम में, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेल है, ठीक है, वॉल्यूम क्या बेटा? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सब्सटेंस. अब इसके अंदर कितनी क्वांटिटी किसी भी चीज की आ सकती है? ठीक है, सो मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मेक्स द डेंसिटी. फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपने कोई सॉल्यूट डाला, लेट्स से सोडियम है, ठीक है, तो देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ सोडियम दैट यू कैन पुट इनसाइड इट. ठीक है, तो जितना सोडियम ज्यादा होगा तो आप उसको कहोगे कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है. बिकॉज डेंसिटी और मास अगर आप मेरे दोनों को टैली करो तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर मास इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली डेंसिटी इंक्रीज होगी. ठीक है, लाइकवाइज अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, सो मास एंड डेंसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो व्हाट इज हैपनिंग है बेटा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी डिफाइंड एज एन इंक्रीज or decrease in the density of a chemical substance in an area. So do you understand this definition better? Increase or decrease in the density.
ठीक है, एक पर्टिकुलर सेल में किसी चीज की क्वांटिटी बढ़ी है या कम हुई है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. इज दिस स्टेटमेंट क्लियर बेटे? Yes. ठीक है, एंड यू नो कि बेटे सेल्स मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स. फॉर एग्जांपल सेल के बाहर जनरली सोडियम आयन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है, एंड लाइक बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज दे मेंटेन द रेस्टिंग पोटेंशियल, तो पोटेशियम जनरली कम होता है अंदर, सो दे कीप दीज वैल्यूज देयर. ओके देन, अदर देन दैट और आप क्या टर्म्स यूज कर सकते हो? आप इसके लिए ये टर्म यूज कर सकते हो, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो आप इस तरह स्टेटमेंट दोगे कि समथिंग मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया, या ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट दोगे. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल गिव योर स्टेटमेंट देन. ठीक है, एंड ऑन ईदर साइड ऑफ द प्लाज्मा बेटा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड along the plasma membrane. Is this statement clear बेटा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट समझ आ गया? प्योरली आप कहाँ यूज करोगे? Yes, miss. Okay, now let's talk about passive transport. और साथ साथ बेटा मैं डायग्राम के थ्रू ना आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी, so let's just get an overview. अच्छा, passive transport बेटा is simply, ठीक है, where you're not, energy is not required, but passive transport में diffusion और facilitated diffusion दो चीजें आ रही हैं. ठीक है, this one here बेटा that you're looking at is a simple diffusion, and these are the small hydrophobic या lipid soluble particles which can easily diffuse through the plasma membrane, because plasma membrane आपको पता है lipid soluble है. ठीक है, so simple diffusion इन particles की होती है. ठीक है, so these are non-polar, ठीक है, small and hydrophobic. तो स्टेरॉइड अगर हार्मोन्स आ रहे हैं, ठीक है, या लिपिड सॉल्युबल कोई भी पार्टिकल्स आ रहे हैं, दे विल मूव इन थ्रू सिंपल डिफ्यूजन. बट इफ यू टॉक अबाउट पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सेकेंडली जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होते हैं, यू हैव टू टाइप ऑफ प्रोटीन चैनल्स. वन इज नोन एज अ चैनल प्रोटीन एंड अदर इज नोन एज अ कैरियर प्रोटीन. ठीक है, एंड यू आर आस्क्ड द डिफरेंस ऑफ दीज टू इन द पेपर आल्सो. सो डिफरेंस क्या है बेटा? चैनल प्रोटीन में एक्चुअली द स्मॉल हाइड्रोफिलिक चार्ज पार्टिकल्स कैन पास थ्रू. ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम आयंस है, पोटेशियम आयंस है, क्लोराइड आयंस है. ठीक है, एंड दीज प्रोटीन चेन्स वर स्पेसिफिक फॉर ईच आयन. ठीक है, सो स्मॉल हाइड्रोफिलिक चार्ज पार्टिकल्स पास थ्रू द चैनल प्रोटीन. ठीक है, सो दे कैन गो इन आल्सो, दे कैन गो आउट आल्सो. ठीक है, और कभी कभी ये वाले जो चैनल प्रोटीन है, दे आल्सो विल अंडरगो कन्फॉर्मेशनल चेंज. कन्फॉर्मेशनल चेंज का मतलब होता है कि व्हेनेवर फॉर एग्जांपल दिस चार्ज पार्टिकल कम्स एंड लाइक गेट्स इन कांटेक्ट विद द रिसेप्टर, ठीक है, इट विल चेंज इट्स शेप. ठीक है, एंड इट विल अलाउ इट टू एंटर. कैरियर प्रोटीन का बेसिकली काम क्या बेटा? तो द लार्जर पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ठीक है, अगेन दे आर हाइड्रोफिलिक बट दे आर लार्जर इन साइज, सो दे एक्चुअली पास थ्रू द कैरियर प्रोटीन. ठीक है, सो अगेन दे एक्चुअली कम अक्रॉस. ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट conformational change will take place in this protein. ठीक है, it will open up for them and it will take in inside. ठीक है, तो ये दो होते हैं, चैनल एंड कैरियर प्रोटीन. सो विल यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीस टू नाउ? कि एक में स्मॉल हाइड्रोफिलिक चार्ज पार्टिकल्स एंटर हो रहे हैं, दूसरे में लार्ज हाइड्रोफिलिक लार्ज पार्टिकल्स बेसिकली व्हिच कैन बी ग्लूकोज, अमीनो एसिड और एनीथिंग. ठीक है, बट दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें एनर्जी यूज नहीं हो रही है. इज दिस क्लियर बेटा? Yes, no? Yes. Yes, miss. Similarly, मेरे चैनल प्रोटीन में स्मॉल पार्टिकल्स आ रहे हैं. किसमें बेटे? जो चैनल में? यस. हाँ, चैनल में स्मॉल जाते हैं, क्योंकि पार्ट देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल बेटे सोडियम आयन अगर है या पोटेशियम आयन है, तो दे आर लाइक, सी बेटा, सोडियम आयन खाली अगर तुम यूज कर रहे हो या पोटेशियम, तो दे आर मतलब एक एटम का बनता है ना एक आयन, इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स एन आयन. ठीक है, बट इफ लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज, तो लुक एट द फॉर्मूला C6H12O6, so it's quite large. So like if you look at this formula also, but definitely it's bound to be larger. और आयन एक छोटा सा ही चीज होगी. ठीक है, तो स्मॉलर चार्ज पार्टिकल्स कैन पास थ्रू दीस चैनल प्रोटीन्स. ठीक है, इसका साइज ही ऐसा होता है. ठीक है, बट दीज लार्जर पार्टिकल्स जो होते हैं ये इसके थ्रू जा रहे होते हैं. So they can be molecules, definitely there can be substances. Is this clear बेटे? ठीक है, अच्छा, कैरियर प्रोटीन बेटा आर देयर फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट आल्सो. वहां डिफरेंस के, वहां पर एटीपी यूज हो रही है. ठीक है, सो कैरियर प्रोटीन दोनों में यूज हो रहे हैं, फैसिलिटेटेड में भी और एक्टिव के अंदर भी. ठीक है, बट फैसिलिटेटेड में उसमें से लार्ज सब्सटेंसेस पास हो रहे हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डेफिनेटली बेटा लार्ज स्मॉल हो सकते हैं, आयंस भी होंगे डेफिनेटली इसके अंदर. ठीक है, बट दे आर ATP is required because they are being sent against the concentration gradient. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है? चीज फॉर एग्जांपल अंदर अगर कम है, लेट्स से दिस इज सोडियम आयन
ठीक है, इनसाइड द कंसेंट्रेशन इज लेस एंड आउटसाइड इट इज मोर. तो आप सर्कल को अगर फॉलो करो, दिस इज सोडियम एंड यू आर एक्चुअली सेंडिंग सोडियम आउट ऑफ दिस पार्ट. ठीक है, अगर तुम बाहर भेज रहे हो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट तो यू विल नीड एनर्जी फॉर दैट. ठीक है, सो इट इज अगेन द सेम कैरियर प्रोटीन बट नाउ यू आर रिक्वायरिंग एटीपी फॉर दैट. ठीक है, और जब हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या डिफ्यूजन की बात करते हैं तो इट गोज डाउन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. तो यहाँ आप देखो कंसेंट्रेशन तीनों की यहाँ पे हाई है एंड इट इज मूविंग फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. इज दिस क्लियर बेटे? यस, नो? जी बेटे, say something. You there? Yes, ma'am. Okay then. अच्छा, अब बेटे डिफ्यूजन की जब हम बात करते हैं बेटे, so it actually depends on a few things. So diffusion बेटे depends upon, so this is the first thing बेटे, the steeper the concentration gradient. So again these terms you will be using बेटा, steeper या higher. ठीक है, so the steeper the concentration gradient, so ठीक है, the movement will be better from high to low. ठीक है, the more the surface area. Surface area क्या चीज होती है? Any idea? सरफेस एरिया क्या होता है बेटे? मैथ्स में पढ़ा होगा. आप लोग हो था कि नहीं बेटा? नहीं है तो बता दो. मैम पता नहीं. अच्छा देखो, सरफेस एरिया बेटा ये होता है. सरफेस एरिया को तुम सिर्फ इमेजिन करो जैसे किसी स्किन होती है किसी भी चीज की. ठीक है, स्किन वो किसी भी चीज को पूरा का पूरा जो कवर कर रही हो. अब फॉर एग्जांपल अगर आप इस सर्कल को देखो तो इट हैज ओनली दिस पार्ट, इसका सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया तो बाहर वाली साइड. ठीक है, और अगर तुम इस चीज को देखो तो इट हैज बीन थ्रोन इनटू फोर्स, सो इसका सरफेस एरिया, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस वन इट इज मोर. देखो यहाँ पे देयर आर मोर प्लेसेस, ठीक है, मोर एरियाज वेयर दीज मॉलिक्यूल्स या दीज पार्टिकल्स कैन गो एंड अटैच. ठीक है, खुद देखो कितना इन्होंने, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है. ठीक है, एज कंपेयर यहाँ पे डायरेक्ट आएंगे दे विल कम इन कांटेक्ट है बट ओनली दिस पार्ट इज इन्वॉल्व देयर. ठीक है, और दिस इज यहाँ पे सरफेस एरिया इज मोर. ठीक है, सो जब हम रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं तो ग्रेटर द सरफेस एरिया द ग्रेटर द रेट ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, तो दोनों केसेस में अगर दोनों एग्जांपल्स को आप कंसीडर करो तो दिस इज वेयर द लाइक मोर डिफ्यूजन विल टेक प्लेस. You get it now बेटे? डिफ्यूजन का मतलब बेसिकली क्या है? पार्टिकल्स आर गोइंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगी. Are you getting this बेटे? Yes, miss. अच्छा, अब लाइकवाइज अगर आप इसको नोटिस करो बेटा तो डिफ्यूजन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस. जस्ट अगर तुम इस वाली लाइन को देखो, दिस इज अ थिन लाइन हियर एंड देन यू फॉलो दिस वन हियर बेटे, दिस बिग ब्लॉक हियर. सो व्हाट डू यू थिंक बेटा डिफ्यूजन किस में ज्यादा होगी, इस वाले ब्लॉक में, इस वाले ब्लॉक में? मैम दूसरा कौन सा ब्लॉक बताया आपने? दिस वन. Here the particles have to cover this much distance. ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ ये है. So what do you think बेटे, कहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए? And you know के like it doesn't require energy. मिस पहले वाले में. मैम ठीक है, क्योंकि जितना शॉर्ट डिस्टेंस होगा बेटा उतनी डिफ्यूजन ज्यादा होगी. ठीक है, तो अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, द थिनर इट इज द like more the diffusion will take place. ठीक है, और डिफ्यूजन इसी द डिस्टेंस ज्यादा होता है तो डिफ्यूजन वहां पे बहुत कम होती है. ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स. अभी हम आगे भी वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे. तो द सेम मैंने आपसे डायग्राम में डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, दैट्स द सेम. ओके, एंड सरफेस एरिया के लिए बेटा सी दे हैव शोन यू दिस पार्ट हियर. फॉर एग्जांपल हियर दे हैव शोन यू बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट कि उसमें क्रिस्टी होती है, द इनर लाइनिंग इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स. तो उसका भी रीजन यही है, द मोर एंजाइम्स एक्चुअली बेटा गो एंड अटैच देयर एंड मोर एटीपी कैन बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन. सिमिलरली हमारे एल्वियोलाई जो होते हैं बेटा उसके अंदर भी लाइकवाइज बिकॉज डिफ्यूजन जितनी, मतलब ये स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर बेसिकली ज्यादा फिर सरफेस एरिया इंक्रीज ड्यू टू दीस रीजंस. सिमिलरली आपके स्टमक में जो सेल्स हैं वहां पे माइक्रोविलाई होंगे. ठीक है, तो जहां जहां स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे, ज्यादा जरूरत है एब्जॉर्प्शन की. ठीक है, तो वहां पे डिफ्यूजन भी ज्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ द सेम स्पेशलाइज्ड सेल्स. क्लियर बेटे? Now, अब इस डायग्राम को तुम और से देखो and then see बेटा what happens. ये क्या हुआ है इसमें?
It started with higher concentration, it was going to lower concentration, and then it stopped. What do you think this ये क्या हुआ यहाँ पे? ठीक है, I'm showing you one more time. What do you think what has happened here? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. अच्छा, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ बेटे. देखो, we are talking about diffusion. Particles and substances move from higher to lower concentration. ठीक है? But what has happened now? Why do you think it has stopped? कुछ particles के तुम्हें numbers में ऐसा लग रहा है कि they have become like it has reached equilibrium or something like that? See, I'll show you one more time. Miss, we can't hear you. Who can't Miss, we can't hear you. अच्छा बेट, अब आ रही है आवाज बेटे? Should be like I can hear you very well. Yes, ma'am. Is it fine? Yes. It starts from higher to lower concentration until बेटे it reaches equilibrium. ठीक है? Equilibrium का मतलब क्या होता है? A balance is created then. ठीक है? तो equal movement of substances will go in and out. Okay. ठीक है? Okay. So spontaneous tendency of substance to move down its concentration gradient. ठीक है? From a high concentration area to a lower concentration area. So we were talking about diffusion. So first step beta is simple diffusion. So I was just discussing के simple diffusion generally किस चीज की होती है बेटा? Hydrophobic non-polar particles की. ठीक है? Which are lipid soluble. They can simply beta diffuse through this plasma membrane. You know this plasma membrane is a lipid bilayer. ठीक है? So simple diffusion में hydrophobic lipid soluble particles can move in through simple diffusion. ठीक है? So यहाँ आपने देखा it was higher concentration. It started moving in until an equilibrium is reached. तो यहाँ पे आप देख रहे हो concentration outside the plasma membrane and inside the cytoplasm like it seems like it has reached a balance. Clear बेटे? So this is what simple diffusion is. So इसके लिए हमें किसी भी transport protein की जरूरत नहीं पड़ेगी. Are you getting it बेटे? Simple diffusion समझ आ गया? Yes, no? Miss, can you explain it again? Okay, देखो. Can you explain it again? Simple diffusion is बेटे देखो let me just write it here. देखो बेटा we talked about particles. ये particles can be they can be hydrophilic. ठीक है? Hydrophilic का मतलब है बेटा water soluble. ठीक है? They can be polar. ठीक है? Polar means charged. ठीक है? So these type of particles hydrophilic जब होंगे water soluble polar. They cannot pass through the lipid bilayer directly. ठीक है? So they need some transport protein. इनके लिए जरूरी होते हैं transport protein to like let them pass through the plasma membrane or let them come out of the plasma membrane. But जो आपके hydrophobic particles हैं या substances हैं hydrophobic, ठीक है? और उसके लिए आप term use कर सकते हो they are lipid soluble, ठीक है? और आप उसके लिए term use कर सकते हो they are actually non-polar. ठीक है? They are small and they can directly pass through this plasma membrane through simple diffusion. ठीक है? Because already this layer is lipid soluble. So it would allow these types of substances to pass through it through simple diffusion. Are you getting it now, बेटे? Yes, ma'am. ठीक है? So यहाँ जो आपको example यहाँ picture में दिखाई है, this is actually with simple diffusion and they are showing you these are the hydrophobic lipid soluble substances which are passing through. So this is how it started. कि यहाँ पे first concentration increase हुई. ठीक है? So because of high concentration gradient, they start moving inside. ठीक है? और lastly इन्होंने क्या show किया कि equilibrium has reached. Got it? मींस उतनी तक मूव करते रहते हैं जब तक कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता. बिल्कुल बेटे. ठीक है? अच्छा, अब these are the factors. ठीक है? Because again this is what they can ask you. अब इसमें बेटे जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो थोड़ा सा रिकॉल करना काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी ओ लेवल्स में. तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट डज इंक्रीज इन टेम्परेचर डज टू पार्टिकल्स? उनकी मूवमेंट को क्या होता है? It increases. The rate of movement उसमें तुमने कुछ increases. टर्म्स यूज किए होंगे कि particles gain energy, they start colliding with each other and the Gain frequency of energy, collision yes. is great. ठीक है? Each other. उसी तरह की टर्म्स तुमने With great pressure. गुड. ठीक है? अभी Yes, हाँ, yes. हाँ टेम्परेचर में प्रेशर की बात नहीं करोगे. टेम्परेचर में तुम बात करोगे रेट ऑफ कोलिजन की. ठीक है? सो अगर आपसे पूछना है Rate कि of collision, okay. which increase the rate of diffusion, so the higher the temperature the greater the rate of diffusion.
ठीक है, सो दिस मेक सेंस आल्सो बेटा, Okay. जितना वो कोलाइड करेंगे, बम्प करेंगे, तो डिफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सो एक्सटेंट ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस इन कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल लाइक वाई बेटा सेम, अगर सेल मेम्ब्रेन के बाहर किसी चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दीज आर फ्यू सब्सटेंसेस व्हिच आर मोर आउटसाइड, ठीक है, एंड लेसर कंसंट्रेशन इज इनसाइड, सो वेयर डू यू थिंक द मूवमेंट विल टेक प्लेस? कहां से कहां जाएगा? Concentration is high in this case. Concentration rate. Concentration gradient का मतलब बेटा कि like it's इसकी डेंसिटी ज्यादा है. For example, यहाँ पे you can see कि more substances are there. ज़्यादा है, okay. ठीक है, so it will go inside. ठीक है. So difference in concentration का मतलब है कि अगर ये आपकी cell membrane is acting as a rate barrier, increase करेगा. हाँ, तो दोनों में कितना difference है? Outside और inside में difference कितना है? ठीक है, so if the difference, if it is more higher outside, so it is bound to flow in. ठीक है, हमेशा higher flow पे जाती है. ठीक है, in this case higher concentration बाहर है ना, यहाँ पे concentration. So the rate will increase. हाँ, so rate of diffusion would increase. ठीक है, then comes distance traveled. ठीक है, जितना अब for example अगर ये lipid bilayer is a very thin membrane, so यहाँ पे diffusion का rate ज्यादा होगा. ठीक है, but अगर for example कोई मैं इस तरह की चीज बना देती, let's say something which is this thick, ठीक है, and this much distance has to be traveled, so what do you think? उस केस में diffusion को क्या होना चाहिए? एक बहुत thin चीज है और एक इतनी ही thick चीज है, तो diffusion इसमें ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा होगी? Think about the distance. यहाँ पे बस ये distance है और यहाँ पे this much distance has to be traveled. Yes, the distance will increase. हाँ, so I'm asking you, so what will happen to the diffusion if the distance is increased? Let's say, rate of diffusion को क्या होना चाहिए? It will decrease. बिल्कुल, they are inversely proportional to each other. ठीक है, distance जितना short होगा, जितना छोटा होगा, उतनी ही diffusion ज्यादा हो जाएगी जल्दी. ठीक है? नहीं, diffusion ज्यादा होगी, बिल्कुल. और जितना distance ज्यादा होगा बेटा, diffusion कम होगी. ठीक है? Then let's talk about the surface area. ठीक है, सरफेस एरिया इज सिंपली बेटा उसको इमेजिन करो एज अ स्किन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की स्किन है, हमारी जैसे स्किन है, इट इज कवरिंग योर एंटायर बॉडी, वो सरफेस एरिया. ठीक है, तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन वुड बी मोर. बेटा सरफेस एरिया मैथ्स में सी एक्सप्लेन करना है. बेसिकली सरफेस एरिया सिंपली देखो, अभी मैंने एक पीछे के लाइक आई शो यू, जैसे वी डिस्कस दीस टू डायग्राम, एक तो आपको एक सर्कल और एक दूसरी स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, दिस वन हियर. ठीक है, सो सरफेस एरिया इज द आउटर बाउंड्री. ठीक है, तो बेसिकली बिकॉज हम यहाँ बात कर रहे हैं बिकॉज these surfaces, these particles are actually in contact with it. ठीक है, but if it is thrown into folds, so there will be more क्या कहते हैं, more areas through which these particles can come in contact. So अब ये पार्टिकल यहाँ भी आ सकता है, ये पार्टिकल इधर भी आ सकता है, बट अगर ये खाली सर्कुलर आपकी आउटर बाउंड्री थी, तो it only had these many areas to like diffuse through. ठीक है, अब इस तरह it has been thrown into folds, it has a lot of space through which it can diffuse through. Are you getting it? Surface area क्या चीज है? Yes, miss. ठीक है, अच्छा, so let's move on to the next surface bit. area तो yes, miss. जी, कुछ कह रहे हो बेटे? Shall we move on? No, miss. अच्छा, Yes, miss. अच्छा, थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बेटे, हमने पीछे जब डिस्टेंस डिस्कस किया था, तो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द थिकनेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जितनी थिक होगी डेफिनेटली बेटा रेट कम हो जाएगा, और अल्टरनेटिवली जितनी थिन होगी रेट वुड इंक्रीज. अच्छा, देन कम्स द सॉल्युबिलिटी. A while back बेटा we were discussing कि non-polar lipid soluble particles can easily diffuse in. ठीक है, because आपको पता है plasma membrane is lipid soluble. ठीक है, so if particles are like these बेटे, they would, the rate of diffusion would increase. Then let's talk about solvent density. Solvent density से क्या मुराद है? Any idea बेटे? जब भी आपके पास कोई solution होता है बेटे, उसमें एक solute होता है और एक solvent होता है. So what do you think बेटे? We talk like Solvent होता है. हाँ, solvent और density का क्या मतलब है? सोल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में रेशियो जो होगी. बिल्कुल, तो जब हम बात कर रहे हैं कि अगर डेंसिटी ज्यादा है, सॉल्यूट के मुकाबले में सॉल्वेंट ज्यादा है बेटे, सो व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन टू द रेट?
कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। अगर सॉल्वेंट की डेंसिटी देखो, अगर सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है तो डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूज तभी सॉल्यूट हो रहा है ना, सॉल्यूट डिफ्यूज हो रहा है ना, तो अगर सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट कम है तो फिर डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सोचो बेटे, कम हो जाएगा ना। देखो अगर आपके पास एक सेल भी है बेटे, तो कोई भी सॉल्यूट बाहर ज्यादा है तो वो ज्यादा है जब भी तो अंदर आ रहा है। मगर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है, तो डिफ्यूजन का रेट कम हो जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? महरमा, आप एक्सप्लेन कर सकती है उसको? वो सही मिस समझ? मुझे खुद समझ नहीं आई। अच्छा रुको, देखो बेटे, आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट डेंसिटी क्या चीज है बेटे? मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी जगह पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है और सॉल्यूट की कम है, ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा क्योंकि डिफ्यूज सॉल्यूट हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एंड देयर इज अ लिक्विड अमाउंट आल्सो, ठीक है, तो किस चीज की डेंसिटी ज्यादा है? सॉल्वेंट की डेंसिटी ज्यादा हो गई है ना सॉल्यूट के मुकाबले में। सॉल्यूट है आपका एक सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट लेट से वाटर है, तो सॉल्यूट का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा ना, क्योंकि कंसेंट्रेशन ही कम है। तो जिस चीज की कंसेंट्रेशन कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम हो जाएगा बेटे। अगर मैं यहाँ पे आपसे कह देती सॉल्यूट डेंसिटी, तो फिर वुड यू बी एबल टू एक्सप्लेन इट देन? अगर मैं आपसे कहती कि सॉल्यूट डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो फिर आप कहते हैं कि सॉल्यूट की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ हमने कह दिया सॉल्वेंट डेंसिटी, तो सॉल्वेंट की डेंसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। डू यू गेट इट नाउ बेटे? यस मिस। और दिस वी हैव डिस्कस बेटे, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजिंग। हमने बात की थी पहले, एक मैंने तुम्हें एग्जांपल दी थी कि अगर फॉर एग्जांपल सोडियम आयन है, ठीक है, तो इट इज अ चार्ज पार्टिकल, एक एटम से आयन बनता है व्हेन इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन। और अगर आपका लार्ज पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ठीक है, तो द हैवियर द मॉलिक्यूल बेटे, द लोअर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। डज इट मेक सेंस नाउ बेटे, दिस और दिस, कि the larger the size, the lower the rate of diffusion, and the smaller the size, the higher the rate of diffusion. ठीक है, अब यही फैक्टर्स इन एग्जाम दे कैन आस्क यू टू एलैबोरेट, ठीक है। अब ये तुम लोग जरा खुद से जनरली एक साइलेंट रीडिंग कर दो। सो जनरली लाइक वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ देम, बट एक नजर इसको पढ़ लो बेटे, कुछ पूछना है तो पूछ लेना। तो टेक टाइम टू रीड इट बेटे, लेट मी नो व्हेन यू डन। ठीक है, मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, तो रीड कर लो फिर मैं दूसरी मीटिंग स्टार्ट करती हूँ। 5 मिनट्स में करके मुझे बता देना। जी बेटे, पढ़ लिया?
अच्छा बेटे, so simple diffusion we have discussed. Now let's talk about facilitated diffusion. ठीक है, अब facilitated diffusion में remember बेटे we have two type of transport proteins. एक होता है channel protein और एक होगा carrier protein. ठीक है, but again it does not require energy. So what will happen बेटा, any for example if it's a charged particle, it will come in contact with the receptor. It can cause it to undergo conformational change. Conformational change का मतलब बेटा उसका shape change हो जाएगा. ठीक है, so that's the term that we use, conformational change. ठीक है, and then it allows it to, अगर यहाँ से open हुआ बेटा, it will let it pass through and then this side would open, this side would close. ठीक है, and it would let it inside the cell. And again facilitated diffusion is also better taking place down the concentration gradient. यहाँ पे concentration ज़्यादा है और inside the cell कम है. Okay then, अब here बेटा they have shown you channel protein, ये जो आपको ये वाला नजर आ रहा है, and this is a carrier protein. ठीक है, and then बेटा look at the size of the particles that are going through. So smaller, ठीक है, what I said to you, smaller charged, ठीक है, hydrophilic particles will go through the channel protein. ठीक है, channel protein जरूरी नहीं है हर वक्त open हो, ठीक है, so they can be closed also. मगर क्या होता है जब ये particles they come in contact with the receptors, ठीक है, then there are some gates involved, they can open and they can let them in. Carrier proteins में तो you can look at the size बेटे. So these are larger particles which will move into the carrier proteins. Get it बेटे? So large and polar molecules cannot get across this by simple diffusion. So you need these two. Are we clear with this? Difference between channel and carrier protein. ठीक है, and Yes, movement will again from higher to lower concentration. ठीक है, और ये पेपर में जरूर आपसे पूछा जाता है. ठीक है, so larger molecules कौन कौन से बेटा, for example glucose, amino acid. ठीक है, जितना large होता है ना बेटा उसकी diffusion होती भी slow है. ठीक है, और उसके लिए फिर उस डिफ्यूजन को अगर हमें इंक्रीज करना है तो वी नीड बेटर लाइक हम इसके लिए फैसिलिटेशन चाहिए ना. फैसिलिटेशन का मतलब बेसिकली आप किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट्स द रीजन बेटा यू नीड दीज ट्रांसफर प्रोटीन्स ओवर देयर आल्सो. ठीक है बेटे, ओके देन. अब यही एक और भी आपकी डायग्राम है, बट आई विल शो यू एनिमेटेड वीडियो ऑफ दैट फर्स्ट. When a region of high solute concentration is separated by a plasma membrane from a region of low solute concentration, there is a concentration gradient between the two regions. If the solute molecules are highly charged, their charges may prevent them crossing the membrane by simple diffusion. If they are large molecules, their size may prevent their diffusion. These molecules must cross the membrane by facilitated diffusion. Highly charged molecules require ion channels to facilitate their diffusion in a process known as channel-mediated diffusion. Larger molecules require carrier proteins to facilitate their diffusion during a process known as carrier-mediated diffusion. During channel-mediated diffusion, ion channels provide a route for charged molecules such as sodium ions to diffuse across the plasma membrane down their concentration gradient. These ion channels are often very selective, only permitting the passage of a single type of ion. These channels may also be gated, only permitting diffusion to occur when the gate is open. During carrier-mediated facilitated diffusion, carrier proteins provide a route for large molecules like glucose to diffuse across the plasma membrane, down their concentration gradient. Each solute molecule first binds to a carrier protein. The carrier protein then undergoes a conformational change, which deposits the solute molecule on the opposite side of the membrane. Like simple diffusion, both these facilitated diffusion processes do not require ATP and will continue until there is an equal solute concentration on both sides of the membrane. So coming to the beta factors that affect facilitated diffusion, ठीक है? So अब अपने वीडियो भी देख लिए. So see बेटा, the number of carrier or channel proteins, the more will be the rate of diffusion. So अब this point clear बेटे? ये वाला point clear हो गया बेटे? Yes, ma'am. Yes, no?
Yes. ठीक है, और कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट तो डेफिनेटली बेटे डिफ्यूजन में जहां कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा वहां रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। ओके देन लेट्स टॉक अबाउट ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस अगेन ओ लेवल्स में तुम कर चुके हो, ठीक है, बट बेटा व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डिफ्यूजन ऑफ वाटर, ठीक है, and that too across a selectively permeable membrane, the process is known as osmosis, ठीक है, so the diffusion of water across a selectively permeable membrane, and that also occurs from area of high concentration to low concentration. Is this part clear बेटे? Yes, ma'am. क्लियर हो गया बेटा ऑस्मोसिस? ठीक है, ओके देन अब लुक एट दिस डायग्राम बेटे, ये जो आपको ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं स्मॉल डॉट्स, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स and the larger ones are, they have shown you as sugar molecules. So now what do you think bete? Smaller water molecules, this is a partially permeable membrane, so what do you think beta, where will be the movement of water particles be? कहां से कहां मूव करेंगे water particles? Ma'am, right to left. ठीक है, toward they will go from right towards the left, ठीक है, क्योंकि देखो कंसेंट्रेशन भी यहाँ पे ज्यादा है, सो है तो ये डिफ्यूजन ही, बट नाउ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वाटर, ठीक है, सो वाटर कैन डिफ्यूज थ्रू अ पार्शियली परमेएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ हायर कंसेंट्रेशन टू अ लोअर कंसेंट्रेशन। तो अगर तुम इसी चीज को इस डायग्राम से कंपेयर करो तो देखो यहाँ पे फिर वॉल्यूम कम हो गया, बिकॉज काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली दे हैव शिफ्टेड देयर, तो अब इस साइड पे तुम देखो, ठीक है, यहाँ पे वाटर की वजह से वॉल्यूम कम हो गया। यू गेट दिस बेटे? मैम शुगर उस तरफ नहीं जाएगा। थोड़ा रिपीट करना बेटे। मैम शुगर उस साइड पे नहीं जाएगा। नहीं, शुगर की पार्टिकल साइज देखो ना, दे आर बिगर इन साइज, सो दे कैन नॉट डिफ्यूज इन डायरेक्टली, और वैसे ही शुगर और अमीनो एसिड की अगर हम बात करें तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जाएंगे। अभी हम ऑस्मोसिस की बात करें इन टर्म्स ऑफ वाटर। ओके मैम। ठीक है, ओके देन, सो अगेन बेटा बिकॉज डिफ्यूजन की हम बात करते हैं तो बेटा इवेंचुअली इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड, दे हैव शोन यू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डाई, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक सॉल्यूट खाली आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, सो दे कैन डिफ्यूज इन, सो यहाँ से इन्होंने एंटर किया इन पार्टिकल्स को, ठीक है, दे डिफ्यूज इन एंड नाउ इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, एंड हियर दे हैव शोन यू टू सॉल्यूट्स, ठीक है, दोनों में जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी बेटे, ठीक है, सो इवेंचुअली देखो ये हायर से लोअर पे जा रहे हैं अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। सो हियर दे सिंपली जस्ट शोन यू कि इक्विलिब्रियम कैसे रीच होता है, ठीक है, दे विल कीप ऑन मूविंग अंटिल दिस स्टेट इज रीच्ड। ओके देन, so we have to discuss equilibrium, so I'll just skip this part, let's come here with it. अच्छा, osmotic balance is also known as water balance, ठीक है, it means बेटा when there are as many water molecules moving into an area as they are moving out, so it is exactly the same thing as equilibrium, ठीक है, but हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं डायनेमिक, डायनेमिक क्योंकि पार्टिकल्स दे कीप ऑन मूविंग, वो एक जगह पे स्टे नहीं करते, सो आप डिफरेंट टर्म्स यूज कर सकते हो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के टर्म यूज कर सकते हो, ऑस्मोटिक बैलेंस यूज कर सकते हो, वाटर बैलेंस यूज कर सकते हो, ऑल ऑफ देम मीन द सेम थिंग। इज दिस पार्ट क्लियर बेटे? यस नो? Yes. ओके, ठीक है, सो ऑस्मोसिस बेटे किस चीज पे डिपेंड करता है अगेन, ठीक है, अभी हम आगे जाके वाटर पोटेंशियल पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल में। वाटर पोटेंशियल का बेसिक डेफिनेशन बेटा ये है, इट इज the tendency of water to move, ठीक है, tendency of water to move, ठीक है, अगेन बेटा फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल जहां पे ज्यादा होगा वहां पे अगेन बेटा ऑस्मोसिस भी ज्यादा होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस यहाँ पे जो आपको ये ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है बेटा, दैट इज दे हैव शोन यू एज वाटर, एंड दीज पर्पल कलर के जो दिखाए दीज आर सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, सो वाटर की अगर तुम देखो यहाँ पे कंसेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूट्स, ठीक है, सो वाटर की टेंडेंसी के भी इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल एरिया टू लोअर वाटर पोटेंशियल एरिया, तो सिंस अब क्या हुआ सॉल्यूट पार्टिकल्स तो मूव नहीं किए बट वाटर मूव कर लिया है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो अब द वॉल्यूम हैज एक्चुअली गॉन डाउन और वाटर यहाँ पे चला गया, दिस इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। यू गेट इट बेटे? अंडरस्टूड?
मैम फिर से Yes, no? एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो वाटर हमेशा मूव करता है बेटा फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसेंट्रेशन. ठीक है, सो सॉल्यूट्स since again बेटा they are bigger, they cannot pass through. Water can pass through. ठीक है, so आपका factors क्या that affect the rate of osmosis? Greater the water potential, greater will be the rate of osmosis. ठीक है, क्योंकि osmosis बेटा is diffusion also, but since we are talking about in terms of water, so the same holds true here also. The thickness of exchange surface, जितना surface area thick होगा, ठीक है, उतना ही बेटा rate कम हो जाएगा. या alternatively जितनी thickness कम होगी उतना rate बढ़ जाएगा. ये हमने पीछे भी डिस्कस किया डिफ्यूजन के अंदर. एंड सिमिलरली बेटा द ग्रेटर द सरफेस एरिया द ग्रेटर द रेट ऑफ डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस. आर दीस पॉइंट्स क्लियर बेटा? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ऑस्मोसिस. यस नो? यस. ओके देन. सो अच्छा, जस्ट वन मोर थिंग बेटे, बिकॉज वी जस्ट डिस्कस है कि चैनल प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं दैट एक्चुअली लेट मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट. तो जो वाटर चैनल होता है वी कॉल इट एक्वापोरिन. ठीक है, एक्वा मींस वाटर. तो दीज चैनल्स आर वेरी स्पेसिफिक. जिस चीज के लिए प्रोटीन चैनल होगा वही चीज उसके अंदर से गुजर सकती है. तो अगर वाटर चैनल है वी कॉल इट एज एन एक्वापोरिन. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट वाटर पोटेंशियल. अच्छा, अब वाटर पोटेंशियल बेटे व्हेन वी टॉक अबाउट ऑस्मोसिस. ठीक है, सो ऑस्मोसिस क्या था बेटा? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन. बट अब आप इसके लिए जो अब टर्म यूज करोगे, नाउ यू विल यूज द टर्म फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल. अब पहले डिफ्यूजन में टर्म्स यूज कर रहे थे फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. ठीक है, अब हम जब वाटर पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं तो अब ये वाली की टर्म्स यहाँ पे यूज करोगे. So definition is exactly the same except for अब आपने ये टर्म यहाँ पे यूज कर लिया. ठीक है, इट्स हाई वाटर पोटेंशियल का मतलब है हाई वाटर कंसेंट्रेशन एरिया टू अ रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल एरिया. ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है बेटे? यस. ओके देन. अब ठीक है, अब इसको जरा गौर से देख लो बेटे. देखो, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म मूविंग विद द ग्रेडियंट मींस बेटे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जहां पे ज्यादा होगा या कम होगा, एंड मूवमेंट डायरेक्टली थ्रू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. सो लेट्स सी बेटे, सिंपल डिफ्यूजन. डू यू थिंक बेटा कैन इजीली लाइक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में दे कैन इजीली मूव सिंपल डिफ्यूजन में? यस नो बेटे? यस मैम. ठीक है, सिंपल क्या था? हायर टू लोअर. मगर सिंपल डिफ्यूजन वाज ओनली इन्वॉल्विंग दोज हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स बेटे. ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन इज डायरेक्टली थ्रू फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, बट रिमेंबर इट इज दोज नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक लिपिड सॉल्युबल पार्टिकल्स. ठीक है, हाइड्रोफिलिक पार्टिकल्स सिंपल डिफ्यूजन से नहीं मूव करेंगे. They will move through facilitated diffusion. ठीक है, so the same thing, yes, they will move like down their concentration gradient, but they will not move through the phospholipid bilayer. उसके लिए हमें transport channels चाहिए. ठीक है, similarly osmosis can move with gradient, but osmosis भी phospholipid bilayer के through हो सकती है, क्योंकि water particles जो थे they are small enough, they can pass through. ठीक है, मगर अगर water की ज्यादा आपको solubility increase करनी है तब we need those aquaporins जब पीछे हमने डिस्कस किया था. ठीक है, तो वाटर कैन पास टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, बिकॉज इट्स लाइक स्मॉलर इन साइज, बट चैनल्स इसलिए होते हैं बिकॉज इफ यू वांट मोर वाटर टू पास थ्रू. इज इट क्लियर बेटे? यस मैम. ओके देन, अब लेट्स डिस्कस दिस पार्ट हियर. ठीक है, दो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट लेट मी जस्ट रीड दैट. They are saying that both the inside of the cell, which is the cytoplasm, and the outside of the cell, okay, which is referred to as extracellular fluid. So cytoplasm is the inside, extracellular fluid is the outside. Both of them are aqueous. It means that both of them have water in them. And you know, water molecules also have their own kinetic energy. They keep on moving. Okay? So water molecules, better, they will spread out or move into and out of the cell according to differences in their water potential, right? So these particles can move directly through the phospholipid bilayer, and just like simple and facilitated diffusion, osmosis is a form of passive diffusion. There is no need for energy.
So remember, water can also pass directly through phospholipid bilayer. ऐसा नहीं है कि water molecule नहीं गुजर सकते, ठीक है? But if we want that definitely किसी एरिया में अगर ज्यादा water की reabsorption करानी है, वहां पे aquaporins जरूर मौजूद होंगे. They would increase the transfer of water molecules. You get it, बेटे? मैम एक्वापोरिन है क्या? हाँ. कुछ कह रहे हो बेटे? एक्वापोरिन क्या है? Aquaporin is a protein channel, बेटे. Aquaporin is a protein channel. जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर बेटे ये आपकी, तो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि we need channel proteins या carrier proteins, ठीक है? So aquaporin is a water channel. Water can diffuse through the plasma membrane, ठीक है? But it can also move through these channel proteins also. तो channel proteins की वजह से facilitated diffusion हो जाएगी, more water will come in. ठीक है? Aqua का मतलब होता है water. Because it's a water channel, हम इसे aquaporin, इसका नाम है aquaporin. Porin का मतलब है pore. Got it? यस मैम. Okay. अच्छा, अब वाटर पोटेंशियल के लिए बेसिकली बेटे हम लोग यूज करते हैं, इट एक्चुअली क्वांटिफाइज, मतलब इट टेल्स यू द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है? द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू डिफ्यूज फ्रॉम वन एरिया टू अनदर ड्यू टू ऑस्मोसिस. तो अभी वी विल टॉक अबाउट बेटा इट्स यूनिट, ठीक है? तो उसकी क्वांटिटी होती है. सो दिस इज व्हाट इट इज बेटे. हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल इज एट 0. प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल बेटा 0 होता है. प्योर वाटर का मतलब उसके अंदर कोई भी सॉल्यूट इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है? सो उसका ये जो यूनिट है बेटा, दिस इज नोन एज साई. इसमें पी साइलेंट होता है, ठीक है? पी साइलेंट, वी कॉल इट एज साई. दिस इज द सिंबल यूज फॉर वाटर पोटेंशियल, ठीक है? सिंबल यूज फॉर वाटर पोटेंशियल. और प्योर वाटर which does not contain any solute at all with it, it has the highest water potential at 0, ठीक है? एंड 0 किलो पास्कल. सो ये इसका यूनिट है. ये चीज क्लियर आई हुई है बेटा आपको? यस नो? यस मैम. जी बेटे. ओके मैम. Okay, so remember बेटा, we are talking about pure water right now. It has the highest water potential at 0 kilopascals. ठीक है? तो वाटर पोटेंशियल दो चीजों पे डिपेंड करता है बेटे, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है? अब रिमेंबर बेटा, प्योर वाटर है, इट डज नॉट कंटेन एनी सॉल्यूट एट ऑल. उस वक्त इसका वाटर पोटेंशियल है 0, ठीक है? बट द मोमेंट यू ऐड एनी सॉल्यूट इनसाइड इट, अब इसका वाटर पोटेंशियल बेटा कम हो जाएगा. तो कम होने का मतलब बेटा इट्स वाटर पोटेंशियल विल एक्चुअली बिकम नेगेटिव, क्योंकि 0 ऑलरेडी है बेटे. 0 से कोई भी चीज कम होगी ऑलरेडी, जैसे मैथ्स में तुम लोग ये नंबर लाइन वगैरह पढ़ चुके हो, तो कोई भी चीज बेटे 0 से कम होगी तो वो नेगेटिव की तरफ चली जाएगी. आर यू गेटिंग इट बेटे? तो जब भी उस प्योर वाटर में कोई ना कोई सॉल्यूट बेटे एडेड होगा, हम उसके लिए टर्म यूज करेंगे वाटर पोटेंशियल हैज बिकम नेगेटिव. गॉट इट बेटे? ओके मैम. यस नो? यस. ठीक है? सो वाटर पोटेंशियल दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल. अब कैसे डिपेंड कर रहा है? लेट्स टॉक अबाउट सॉलिड पोटेंशियल फर्स्ट बेटे. अच्छा, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है बेटे? द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द वाटर पोटेंशियल इज कॉल्ड एज सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है? एक, ठीक है, उसमें कितना सॉल्यूट मौजूद है, ठीक है? कितनी कंसंट्रेशन सॉल्यूट की आपके सॉल्यूशन के अंदर है, दैट इज व्हाट मेक्स अ सॉल्यूट पोटेंशियल. It is the extent to which the solute molecules decrease the water potential of the solution. So याद रखना बेटा, जितना solute ज्यादा होगा उतना water potential कम हो जाएगा. Water potential के tendency of water to move. तो जहां solute ज्यादा बढ़ेगा बेटा, water will not be able to move out of the solution. Are you getting it बेटे? So Yes, the ma'am. more solute there is, the lower the tendency of water to move out. तो जहां पे सॉल्यूट के मुकाबले में वाटर ज्यादा होता है बेटा, वाटर कैन मूव आउट. मगर जब सॉल्यूट ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो वाटर कैन नॉट मूव आउट ऑफ द सॉल्यूशन. आर यू गेटिंग इट बेटे?
Yes. ठीक है. अच्छा, देन अगेन बेटा प्योर वाटर के लिए सॉल्यूट पोटेंशियल 0 है बिकॉज डेफिनेटली बेटा वहां होता ही नहीं है, एंड इट हैज अ नेगेटिव वैल्यू फॉर अ सॉल्यूशन. Adding more solute to a solution decreases its water potential. The greater the concentration of solute, the more negative the value of solute potential. ठीक है. तो अगेन बेटा सॉल्यूट भी जितना बढ़ता रहेगा उसकी भी वो नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहा है. और सिंबल मैंने आपसे कहा था बेटा पी साइलेंट है, वी कॉल इट साइ. और क्योंकि हम सॉल्यूट पोटेंशियल की बात करें तो बेटा इसके साथ सबस्क्रिप्ट एस लगा दिया है. ठीक है. तो अगर हम सॉल्यूट पोटेंशियल की बात करते हैं तो वी यूज दिस सिंबल साइ और सबस्क्रिप्ट बेटा यहाँ नीचे लगाया जाए. ठीक है. दिस इज व्हाट वी कॉल एज सॉल्यूट पोटेंशियल. सॉलिड पोटेंशियल समझ आ गई बेटे सब. ये डायग्राम आप जरा देख लो गौर से, ये आपकी बुक में से ही है. तो सी बेटे यहाँ पे वाटर ज्यादा है, सॉल्यूट कम है. ठीक है. तो हम बात करेंगे बेटे रिलेटिव टू ईच अदर, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर वाटर नहीं है, इसमें सॉल्यूट है मौजूद, मगर बिकॉज वाटर की कंसेंट्रेशन बेटे सॉलिड के मुकाबले में ज्यादा है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल. आर यू गेटिंग इट बेटे? Yes, तो ma'am. अब अगर तुम इस डायग्राम को देखो, देखो वाटर हैज मूव्ड आउट. तो अब यहाँ पे देखो इस साइड पे ए की साइड पे वॉल्यूम कम हो गया. आर यू गेटिंग इट बेटे? Yes, ma'am. ठीक है. मगर तुम यहाँ पे देखो इधर बेटे सॉल्यूट ज्यादा है और यहाँ भी देखो सॉल्यूट ज्यादा हो गया. अब जब सॉल्यूट ज्यादा हो जाता है तो दिस वाटर कैन नॉट मूव बैक. वाटर सिर्फ उस सूरत में मूव करते हैं जब सॉल्यूट कम होता है. ठीक है. यहाँ सॉल्यूट कम था, वाटर मूव्ड आउट. बट इस केस में अब अगर तुम कंपेयर करो तो यहाँ वाटर ज्यादा हो गया, इधर कम है, मगर क्योंकि सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, these water molecules cannot move back now. ठीक है. अब ये सिर्फ एक सूरत में वापस जा सकते हैं, which is actually बेटा अगर हम उसका प्रेशर बढ़ा दें. तो लेट मी शो यू द डायग्राम फर्स्ट, दिस पार्ट हियर. अगर तुम इस चीज का प्रेशर इंक्रीज करोगे, ओनली देन these water particles will be able to move. So this is what is pressure potential. ठीक है. तो जब सॉल्यूट ज्यादा होगा, वाटर पार्टिकल्स विल नॉट बी एबल टू मूव इन अनलेस यू इंक्रीज द प्रेशर. तो जब हम प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं बेटा, ओनली देन वाटर पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस. So do you get the difference between solute potential and pressure potential बेटे? Ma'am, please repeat solid potential. Pressure potential repeat कर दूं? Ma'am, solid. Solid potential. अच्छा, let me go back to the side. ये देखो बेटे, डायग्राम ए में you have only 3, इन्होंने आपको 3 मॉलिक्यूल्स दिखाए सॉल्यूट के, एंड इधर देयर आर मोर. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 है. ठीक है. बट वाटर इज मोर देयर. तो वाटर पोटेंशियल क्या है बेटा? टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल. तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हैं और इधर कम है. ठीक है. तो यू कैन लुक एट द एरो आल्सो. तो वाटर विल मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, क्योंकि अगर इन दोनों की तुम कंसेंट्रेशन देखो तो वाटर इज मोर एज कंपेयर टू सॉल्यूट. ये वाली डायग्राम क्लियर हुई है बेटे? Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा, अब जब वाटर मूव आउट कर गया बेटे, तो नाउ लुक एट दिस डायग्राम. अब वाटर मूव कर गया बट सॉल्यूट स्टेज द सेम. वही 3 पार्टिकल्स जो यहाँ पे थे, वही 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी है. ठीक है. बट नाउ व्हाट हैपेंस बेटे, इस साइड पे भी करके यू हैव मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स. So whenever the concentration of solute increases, water potential decreases. Water potential decrease होने का क्या मतलब है बेटे? Tendency of water to move out has decreased. अब ये water वापस नहीं जा सकता. ठीक है. तो जब solute कम होता है as compared to water, water can move out. मगर अगर solute की concentration ज्यादा होती है बेटे, तो concentration of water to move decreases. अब हालांकि अगर तुम इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ वाटर कम है और इधर ज्यादा है, मगर क्योंकि सॉल्यूट ज्यादा है बेटा, सो दिस वाटर कैन नॉट मूव आउट नाउ. मगर ये सिर्फ एक चीज से बाहर आ सकते हैं, अगर हम यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर दें. ठीक है. आपने यहाँ पे किसी भी पिस्टन के थ्रू प्रेशर इंक्रीज किया बेटे, तो आप फोर्स अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली बेटे वॉल्यूम कम हो जाएगा ना. हम उसको फोर्स अप्लाई करें तो प्रेशर इंक्रीज, उस प्रेशर की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल्स कैन अगेन बेटा गो बैक. दैट वुड बी नोन एज प्रेशर पोटेंशियल. So do you understand the difference between the two now, बेटे? Yes, no? Yes, ma'am. Okay then. ठीक है. So this is important. As pure water is composed solely of water molecules. ठीक है. Let me use this.
Pure water, remember, it is only water molecule. There is no solute at all. So it will have the highest possible water potential, which is quantified at 0. Okay, so this value you have to remember. When a solute is added to pure water, the relative number of water molecules in the resulting solution changes and the water potential decreases. Does it make sense now, Midin? Clear हो रहा है बेटा अब ये? Yes, no? Okay. The more solute molecules in a solution, the lower the water potential and the more negative the value. तो याद रखना बेटा 0 है तो 0 से वो नेगेटिव होगी तो इसका मतलब नेगेटिव में सारी वैल्यूज आ जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहता है कोई कि हमने वाटर पोटेंशियल मेजर किया -800 पे, ठीक है, तो they are saying it has a lower water potential than any solution with a water potential measured in -1 to -799. तो ये चीज बेटा अगेन बेसिक मैथ्स है. मैथ्स में अगर तुम किसी नंबर लाइन को भी बेटा फॉलो करो तो 0 के बाद अगर -1, -2, -3 तो -3 इज एक्चुअली बेटा लाइक स्मॉलर देन -1. तो जितनी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती जाती है बेटा उतना ही वो लोअर होता जाता है. ठीक है, तो अब -800 जो है बेटा इट हैज अ लोअर वैल्यू देन -799. You understand this, Vidin? Yes, ma'am. Yes, no? Yes, ma'am. Okay then. So ठीक है, अब हम ऑलरेडी बेटा ये चीज डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स दे आर एक्चुअली जस्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं. प्योर वाटर आपको पता है बेटा वाटर पोटेंशियल 0 है. So state what happens to the water potential value as soon as the solute molecules are added to the pure water. तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है बेटे, अगर ऑलरेडी 0 है और आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया, what will happen to the water potential? आपको वो टर्म यूज करनी है बेटे. मैम नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, इट्स 1 मार्क क्वेश्चन. सो एज सून वाटर पोटेंशियल वुड गेट लोअर एंड इट बिकम्स नेगेटिव. ये आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए उन्होंने दे दिया है. ठीक है, 0 से कोई भी वैल्यू नीचे जाएगी बेटा वो नेगेटिव हो जाएगा. बट दिस वुड ओनली हैपन एज सून एज अ सॉल्यूट इज एडेड टू इट. सही है. अच्छा, इस तरह के एमसीक्यूज बेटा आपके पेपर में बहुत आते हैं. नाउ इसको कंपेयर करो बेटा, -800, -1050, -950. ठीक है, अब इसमें ये आपको 3 सेल्स दिखाए तो कौन तुम्हें मुझे बताओ, -800 सबसे छोटा है तो ये इन दोनों में से कहां पहले जाएगा, टी में या इसमें? व्हाट डू यू थिंक बेटा? 950. जी थोड़ा जोर से बोलना बेटे. टी में है इसमें? मैम एस में. अच्छा, थिंक अगेन. सबसे लोएस्ट वैल्यू किसकी है? मैम आर. वैल्यूज है सबसे लोएस्ट टी है. टी की है, एस की है? मैम टी की है. टी की है. ठीक है, तो जहां पे स्टीपेस्ट ऑफ द डिस्टेंस डिफरेंस होगा ना वहां पे जाएगा बेटे. -800 के मुकाबले में, ठीक है, -1050 बहुत ज्यादा छोटा है. ठीक है, -950 फिर भी मतलब एक वो वैल्यू है. तो हमेशा स्टीपेस्ट डिस्टेंस डिफरेंस पहले क्रॉस होता है. ठीक है, तो -800 इधर जाएगा, इसके बाद -800 डेफिनेटली बेटा यहाँ पे जा सकता है, मगर -950 कैन नॉट गो देयर बिकॉज -800 इज बिगर देन दैट. -950 इधर ही मूव करेगा. तो पेपर में आपकी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वी हैव टू ड्रॉ एन एरो एंड शो इट. So you get an idea, बेटे? So movement of by osmosis from cell R to T happens fastest because steepest water potential gradient exists between the two cells. ठीक है, so look at the values बेटे. जहां सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा वहीं पे पहले मूव करें. You get it now? Yes. Clear हो गया बेटे? Yes, मैम. ओके देन. प्रेशर पोटेंशियल में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, एक दफा और बता देती हूँ. ठीक है, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर इट विल बेटर एक्चुअली इंक्रीज द वाटर पोटेंशियल ऑल्सो.
प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से नाउ वाटर मॉलिक्यूल्स कैन अगेन मूव आउट ऑफ B to A. ठीक है, so as pressure potential increases water potential also increases. मगर जब सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ता है तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है. तो आपको सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल का समझ आ गया कि इफेक्ट क्या होता है मेरे वाटर पोटेंशियल के ऊपर. यस मैम. ठीक है, तो एक दफा मैं यहाँ पे रीकैप इसका करा देती हूँ. ठीक है, आपका सॉल्यूट पोटेंशियल बेटे सॉल्यूट पोटेंशियल बेटा इंक्रीज होगा तो वाटर पोटेंशियल जो है बेटा वो कम हो जाएगा. ठीक है, और अगर आपका प्रेशर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो वाटर पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा. ठीक है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, सॉल्यूट बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा और अगर सॉल्यूट कम हो जाएगा बेटा तो वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा. तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है और इधर डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अंडरस्टैंड द डिफरेंस बेटे? यस मैम. ओके देन. अच्छा, अब नाउ बेटा वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस. तो हम तीन टर्म्स बेसिकली बेटा यहाँ पे यूज करेंगे. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक हम यूज करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक हम टर्म यूज करेंगे हाइपोटोनिक और एक हम यूज करेंगे बेटा आइसोटोनिक. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आस्क्ड ऑफ यू इन द पेपर आल्सो. टॉनिक का मतलब है बेटा सिंपली एक्चुअली वी आर रेफरिंग टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स इन अ सॉल्यूशन. ठीक है, हाइपरटोनिक का क्या मतलब हो, अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर. हाइपोटोनिक इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस. और आइसोटोनिक का मतलब बेटा इट इज द सेम एज वाटर. ठीक है, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वाटर पोटेंशियल. तो ठीक है, तो उस वाटर में अगर तो सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है वी कॉल दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, इफ इट इज लेस वी कॉल इट हाइपोटोनिक और अगर सेम है तो आइसोटोनिक. ठीक है, सो वी विल बी रेफरिंग टू दीस टर्म्स नाउ. ठीक है, सो आइसोटोनिक क्या होता है बेटा, इट हैज द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स एंड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर पोटेंशियल. ठीक है, तो उसमें वाटर पोटेंशियल सेम होगा. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, ना ही सेल से वाटर निकलेगा ना ही सेल के अंदर, मतलब इस तरह इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा. तो आइसोटोनिक समझ आ गया बेटा आपको, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स. यस मैम. इज इट क्लियर बेटे? यस मैम. ठीक है, अच्छा. सो देयर विल बी नो नेट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस when the cell is suspended in an isotonic solution. ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जनरली बेटा जब तुमने खुद भी देखोगे जो ड्रिप्स वगैरह लगती है ना, आईवी फ्लूइड्स होते हैं. आईवी का मतलब होता है बेटा इंट्रावेनस. ठीक है, तो वेन्स के थ्रू जब आपको ड्रिप्स वगैरह लगती है बेटा उसमें जो फ्लूइड होता है ना दैट इज आइसोटोनिक. उसका रीजन क्या है बेटा, वो आपकी वेन्स के थ्रू आपकी बॉडी में जा रहा है. ठीक है, तो अगर वहां पे हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक हमने दे दिया इट कैन एक्चुअली बेटा हैव डिजास्टर्स इफेक्ट ऑन योर सेल्स आल्सो. तो हमें उसके अंदर वही सिचुएशन मेंटेन करनी पड़ती है जो आपकी बॉडी में. ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिया जाता है इसमें, ताकि ये ना हो कि अगर हमने हाइपरटोनिक दे दिया तो सेल से वाटर निकल के बाहर चला जाए. ठीक है, हाइपोटोनिक दे दिया तो सेल्स के अंदर आ जाए. ठीक है, सो दैट्स द रीजन आईवी फ्लूइड्स जो हमें दिए जाते हैं, जो ड्रिप्स होती है बेटा, दे हैव आइसोटोनिक सॉल्यूशन देयर. गॉट इट? सो दिस इज बेटा व्हाट हाउ एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन लुक्स लाइक. मैम हाइपरटोनिक क्यों नहीं देते? हाइपरटोनिक में सॉल्यूट ज्यादा होते हैं. आइसोटोनिक में ये देखो बेटा, इफ यू लुक एट दिस पार्ट हियर, ये इन्होंने आपको सॉल्यूट दिखाए, ये आपको वाटर पार्टिकल्स दिखाए. सो जितने सेल के अंदर हैं उतने ही सेल के बाहर है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट, क्योंकि सेम अमाउंट ही है बेटा, तो इक्वल अमाउंट में मेरा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा यहाँ पे. सो जितने सॉल्यूट बाहर है बेटे उतने ही अंदर है. तो ऐसा नहीं होगा कि सॉल्यूट के ज्यादा होने की वजह से वाटर बाहर चला जाए. तो आइसोटोनिक में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आउटसाइड is equal to the concentration of solute molecules inside the cell. Remember बेटा, now we are talking in terms of solute only. ठीक है, तो जितना सॉल्यूट बाहर है उतना ही सॉल्यूट अंदर है. तो ऐसे एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं आइसोटोनिक. ठीक है,
तो इसकी वजह से वाटर की मूवमेंट बेटे विल बी लाइक एट एन इक्वल रेट। ये चीज क्लियर हुई बेटे? यस मैम। ठीक है। अच्छा अब ये मीटिंग दोबारा एंड हो रही है बेटे, मैं रीजॉइन कर रही हूँ उसको।